Hi everyone, myself is Professor B.R. Tiwari and I am going to start the differential equation. Already I have started in last lecture. There I covered type A. In type A I covered about the two types of linear differential equation, dy by dx plus py equal to q and dx by dy plus px equal to q. So now I am moving on the next part, and that part is linear differential equations or problem we are going to solve, and in this we will see the word problem. Now the next slide I am going to take it is the open board software of mine. Okay, so here I am going to start. Acha, unfortunately what happened, I recorded the lecture, but later on I came to know there was some problem. So again I am going to each and everything. I am not going to rewrite each and everything because already I have written. Okay, so I am going to explain the things whatever written on a board. For that I am going to use the arrow. Okay, now what you will have to keep in mind, you will have to just keep in mind what is mean by y, if the what is mean by the dy by dx. If y equal to fx is the curve, then dy by dx is nothing but the slope of the tangent. If px comma y be any point on a curve, then x is known as abscissa of the point and y is known as ordinate of the point. And the last but not least, if any point lies on a curve, then it will satisfy the equation of the curve. So these three things will help you to understand the word problem. Okay, now here I am going to take the first problem. The very first problem is find the equation of the curve passes through the origin. Now the curve is passing through the origin. So we are coming across that key 0 comma 0 is the point which lies on a curve. Then having the slope of the tangent x plus 3y minus 1 at any point p x comma y. So the general slope of the tangent is given. So what I am going to do, I am going to write, as I told you, the slope, the meaning of the slope is what? Unfortunately, I did this D. Oh shit. I'm sorry. Okay. Line I'm going to take, and here I'll have to select the pane. Okay. Okay. So, what is happening? I don't know. I'm going to select the pane. Pane. Here it is, the pane. Okay, now the pane is working properly. Okay, so as per question it is given that slope of the tangent, the slope of the tangent means dy by dx, slope of the tangent means dy by dx. Here it is given that dy by dx, the slope of the tangent is like this. अब मेरे दिमाग में आ रहा है इसे कैसे सॉल्व करें, ये होमोजीनियस तो है नहीं, ठीक है, होमोजीनियस पढ़ना है तो होमोजीनियस का वीडियो तो अभी मैंने डाला नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल के बाद डायरेक्टली यही डाल दिया है मैंने, ठीक है। तो मेरे दिमाग में तो चल रहा है चलो सर ने ये तो पढ़ाया था, एक तो वेरिएबल सेपरेबल होता है जहाँ पे डी एक्स डी वाई को न्यूमरेटर में ला के इसे सेपरेट किया जाता है, लेकिन दूसरा टाइप होता है लीनियर। लीनियर में क्या किया जाता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करना होता है। अब p क्या हो सकता है, या तो p x का फंक्शन हो सकता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखे डी वाई बाई डी एक्स के बाद एक ऐसा टर्म हो जिसके अंदर x और y दोनों हो, या फिर जो p है वो कांस्टेंट हो सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स के बाद एक ऐसा टर्म दिखे जैसे k टाइम्स ऑफ y ही वाला टर्म दिखे, कांस्टेंट इनटू y, तो फिर बच्चा डायरेक्टली बोलेगा कि हाँ सर ये वाला टर्म उस साइड लेके जाओ, क्योंकि जब तो आप ये वाला टर्म लेके जाओगे तभी ये आपके लिए ऐसा काम करेगा, 3y कुछ यूं काम करेगा। ओके, हाँ। सो अब ये देख के तो बच्चे ने डायरेक्टली बोल देना है कि सर p की वैल्यू तो 3 है और q की वैल्यू x माइनस 1 है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx, डाल दिया, ये आ गया, ठीक है।
तो अब ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ देखो बाई पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बाई पार्ट्स करने के लिए अगले वीडियो में, आई मीन से अगले स्लाइड में मैंने पूरा बोर्ड मेथड से बाई पार्ट्स किया है। u इंटीग्रल ऑफ v, और कोई बच्चा बोले कि सर आपको कैसे पता चला कि x माइनस 1 u है, तो फिर एक रूल होता है i लेट। अगर i लेट के हिसाब से टर्म देखो, इनवर्स है नहीं है, लॉग है नहीं है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों में अलजेब्रिक टर्म कौन सा है, तो x माइनस 1 u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसका री इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह मैंने बाई पार्ट्स लगाया, यहाँ पे आंसर निकाला, ठीक है। अब अगले स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन दिया था। ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे आपको सी इवैल्यूएट करना है। सी इवैल्यूएट करने के लिए मैंने क्या किया कि कर्व 0,0 से पास हो रहा है, इसलिए प्रीवियस इक्वेशन में जो प्रीवियस इक्वेशन मिला था y0 x0 ये सब डालने के बाद फिर मैंने ये सी इवैल्यूएट किया, और रीपुट करने के बाद जो मुझे मिला वो कर्व का इक्वेशन मिला। इस एग्जाम्पल में देखो दिया क्या था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, दिया था स्लोप ऑफ द टैंजेंट ये है। तो अगर समझदार बच्चा होगा तो बोलेगा सर dy बाई डी एक्स माइनस 4x अपॉन 9y। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल से ही सॉल्व करना है, ठीक है। कभी कभार वेरिएबल सेपरेबल भी इसमें लग जाता है, मेजॉरिटी। अच्छा, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम तो ये कह लो कि लीनियर डिफरेंशियल के लिए ही होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभार वेरिएबल सेपरेबल भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेबल से ही काम हो गया, और बोल रहा है कि ये 3/√2 से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने सी इवैल्यूएट करके यहाँ पे डाल दिया, रीपुट कर दिया इक्वेशन में, एंड मुझे आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोलता है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्सीड्स द स्लोप बाय 5। स्लोप से 5 ज्यादा है क्या? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स का सम, ठीक है। अब मैंने सोचा कि क्या मैं वेरिएबल सेपरेबल लगा सकता हूँ, मुझे लगा कि नहीं यार, कैसे लगाऊं, dx उस साइड लेके जाता हूँ तो x प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएंगे, सेपरेट तो हो ही नहीं पाएंगे, तो कैसे वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, नहीं लगना है। फिर वही कि यहाँ पे जो टर्म जाएगा उसके साथ या तो एक्स वाई दोनों रहेंगे या तो ओनली वाई वाला टर्म रहेगा, तो मैंने इसलिए वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने P और Q लिख दिया। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट समझाया है क्योंकि मेरा शॉर्टकट थोड़ा पॉपुलर हुआ है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं सर ऐसे शॉर्टकट बीच में डाला करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वही u x माइनस 5 है, कंटिन्यूस डेरिवेटिव 1 0, v e रेज टू माइनस एक्स है, आइलेट के हिसाब से सिलेक्ट किया है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। अब इसका जो इंटीग्रल होगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, लेकिन ऑलरेडी माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये आ गया अगला आंसर आपको, ठीक है। दिया है इट्स द कर्व पासेस थ्रू 0,2, y की जगह पे 2, x की जगह पे 0 डाल के हम इवैल्यूएट करेंगे। अगर कहीं तुम्हें कोई डाउट आए, नहीं समझे तो पूछो। लास्ट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट इक्वल टू सम ऑफ द एब्सिसा ऑफ द p एंड प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द p। ये कुछ ऐसे दे रखा है। Slope of the tangent is sum of the abscissa of the p and sum of the abscissa and the ordinate of the p दिया है, x plus xy दिया है, x कॉमन ले लेंगे 1 plus y, dy अपॉन 1 plus y इक्वल टू x dx कर दिया। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो जस्ट यहाँ पे तो वेरिएबल सेपरेबल ही लगा दिया। कोई बच्चा बोले सर लीनियर की तरह करो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा इजी हो जाएगा। और कर्व आना चाहिए y इक्वल टू, कर्व आना चाहिए y इक्वल टू, ठीक है।
कर्व आना चाहिए y इक्वल टू, इसलिए ln हटा तो ये e रेज टू हो गया, e रेज टू c, कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट, अ लैम्डा इज अ न्यू कांस्टेंट। द कर्व पासेस थ्रू 0,1, 0,1 से कर्व पास हो रहा है, इसलिए मैंने लिख लिया 1 + 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेज टू 0/2। ठीक है, लैम्डा डाल दिया, देयरफॉर यहाँ से आ गया आंसर 1 + y इक्वल टू 2 ई रेज टू x²/2, 1 उस साइड ले लिया। तो इस तरह 3-4 प्रॉब्लम मैंने वर्ड प्रॉब्लम ले लिए। ये वर्ड प्रॉब्लम क्या करेंगे, तुम्हें वो बेसिक समझने में हेल्प करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल कब लगता है और लीनियर डिफरेंशियल कब लगता है। ठीक है, ये दो चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई है तो अब इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दो और पार्ट बचे हुए हैं और वो दोनों मेरे सबसे फेवरेट पार्ट है। जब तक लेक्चर का वेट करो, अगले लेक्चर का वेट करो। और सबसे इंटरेस्टिंग और एक चीज बता दो, वो मोस्टली जेई के लिए ही होता है। तो जो बच्चा बोर्ड का भी मेरा लेक्चर देख रहा है उसके लिए यही दो वीडियो है जो लीनियर डिफरेंशियल के लिए काम आएंगे। वीडियो 3 और 4 काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।